Good morning to all of you. Class 8, subject Social Science. Topic When People Rebel 1857 and After. Dear students, आज इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे ए मिटानी बिकम्स ए पॉपुलर रिबिलियन। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। Through struggles between rulers are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. यद्यपि शासन और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन्न हो जाती है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वह सभी कुछ करना चाहते हैं। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। After 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। Sepoys mutinied in several places beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regards it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ में शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में ये सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officer in ब्रैकपुरा। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs.
चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूरों की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। On 10 May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. तो उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्हें फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। The soldiers were determined to bring an end to their rules in the country, but who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question: the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने का आमादा थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, अब ब्लैक बोर्ड पर होमवर्क लिखा हुआ है, तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रूमर्स स्प्रेड अमंग द सिपाहीज ऑफ द मेरठ रेजिमेंट अबाउट द न्यू कार्ट्रिजेस। इसका आंसर है द रूमर्स स्प्रेड दैट द न्यू कार्ट्रिजेस वर coated with the fats of cows and pigs। इसको आपने कॉपी पे लिखना है और याद करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।